Hello students. Okay, so let's proceed further in our chapter number 4, that is structure of atom. We were doing the structures of the orbitals. Until now we have discussed about the s, p, d and f orbitals. Okay, and the structure of f orbital is just not discussed in your class because it is a very complex structure. Just you have to learn that f subshell has 7 orbitals and it can accommodate maximum 14 electrons. How we come to know that it can accommodate 14 electrons? By that fact जो हमने rule पढ़ा था previously, that in one orbital maximum 2 electrons can be there. So in 7 orbitals how many electron can be present? 14. Okay, so this was about the orbitals. Now we will move further. Okay, this is one again very important point, as I already told you that the orbitals are represented by the symbols s, p, d and f, and these symbols, they have originated from the terms sharp. S has been derived from sharp, p principal, d diffuse and f from fundamental. Okay, so this is it. Now we will discuss the differences between orbit and orbital. See, in yesterday's live class also I told you the difference between orbit and orbital. Orbit is generally what? It is a circular ring type. एक सर्कुलर रिंग प्रेजेंट, उसको तो बोला जाएगा ऑर्बिट. एंड व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज अ 3 डायमेंशनल रीजन. ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. ये 3D में बात हो रही है यहाँ पे. एंड जो ऑर्बिट की बात हो रही थी वो आपका 2D के अकॉर्डिंग चल रहा है. ओके, सो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल. ओके, सो फर्स्ट लेट अस see their definitions by which we can be more clear that what are orbits and what are orbitals. And now the term which we use will be orbitals. Okay, orbit term is discarded. You see, orbit. So what is orbit? It is a well-defined circular path. It is a circular path around the nucleus in which the electron revolves. And if I talk about orbital, what is orbital? It is a 3D space around the nucleus where electron finding probability is maximum. Okay, where electron finding probability is maximum. Orbit, as I already told you, it is circular in shape. And orbitals का बेटा शेप डिफरेंट होता है, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, व्हाट वाज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? इट वाज स्फेरिकल. ओके, इट वाज स्फेरिकल इन शेप एस ऑर्बिटल. एंड पी ऑर्बिटल, इट वाज डम्बल शेप्ड. p orbital कैसा था बेटा? डम्बल शेप. लाइक वी हैव डन दैट p subshell, it has 3 orbitals like px, okay, then py and pz, ऐसे एक्सिस वाइज px, py and pz. ओके, सो जो शेप कैसा है इनका px, py, pz का दिया डम्बल शेप्ड. ओके, और ऑल टुगेदर देखो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ सो देखिए ये एक्सिस बना हुआ अपना x, y, z. सो दिस इज योर px, दिस इज योर py and this is your pz. तो if I talk about the complete p subshell जो कि 3 ऑर्बिटल, तो ये आप और it will give a shape of sphere. ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे रीजन हो जाएगा, 3 डायमेंशनल रीजन हमारा जनरेट हो जाएगा. ओके, अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट. It represents that an electrons move around the nucleus in one plane. Okay, एक ऐसे प्लेन में ही मूव कर रहा है, जैसे मैंने बताया था ना सर्किल है और इस सर्किल में मूव करे जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन. बट ऑर्बिटल में क्या बताया गया बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है इट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ 3D स्पेस, एक्स वाई जेड, 3x तीनों एक्सेस में वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. Now this point is very important, the 4th point, because यहीं से हमारा ये term orbital actually generate हुआ था. Okay, actually students, there was a principle known as Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Okay, try to understand what he said in this principle. This Heisenberg is the name of the scientist. Okay, he said that it is not possible to find out the position as well as momentum of an electron simultaneously. Okay, देखो बेटा अभी आप ये मत देखिए कुछ भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप मेरी स्टेटमेंट सुनिए कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या गिवन था
कि साइंटिस्ट हीजनबर्ग ने ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेम टाइम पे हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू। लुक, ही सेड दैट कि भाई आप बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। सो हीजनबर्ग ने बोला कि यू कैन नॉट फाइंड आउट, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इज व्हाट, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। और एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम पोजीशन कि वो किस टाइम पे कहाँ पे पोजीशन है उसकी, और उसका मोमेंटम दैट इज mv फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इट्स मास इज वेरी लेस। अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वेलोसिटी में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज पोजीशन पे आप कंसंट्रेट करोगे तो उसकी वेलोसिटी इतनी हाई है कि वो कहीं और ही पहुंच जाएगा उस टाइम पे। अगर आप वेलोसिटी पे कंसंट्रेट करोगे तो उसकी पोजीशन इतने में चेंज हो जाएगी। ओके, सो प्रिंसिपल क्या था कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट फाइंड आउट द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हो ही नहीं सकता है पॉसिबल। तो आपने कैसे कह दिया, आपने कैसे ये पाथ जनरेट कर दिया, उसका यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट था कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ट्रेस आउट ही नहीं कर पा रहे, उसकी वेलोसिटी को ट्रेस आउट कर ही नहीं पा रहे एक साथ, तो आपने ये पाथ, आपने ये ऑर्बिट कैसे ट्रेस आउट कर दी कि बस इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। फाइन, सो अकॉर्डिंग टू हीजनबर्ग प्रिंसिपल ऑर्बिट का सिस्टम ही खत्म हो गया। ओके, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। दोबारा बोल रही हूँ बेटा मैं, देखो किस क्या कहा उसने कि टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ओके, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम एट द सेम टाइम। एक फाइंड आउट करोगे दूसरे में गड़बड़ होगी, दूसरे को फाइंड आउट करोगे पहले में गड़बड़ होगी। ओके, सो जब दोनों चीजें आप एक साथ निकाल ही नहीं रहे तो आपने पाथ कैसे बता दिया कि भाई यही इसी पाथ में इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये तो रॉन्ग हो गया। ओके, सो द केस ऑफ ये जो ऑर्बिट था ये फिनिश। ओके, सो इसके बाद अब आपका आया था क्या, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में क्या बताया गया कि चलो न्यूक्लियस है मान लीजिए ये, तो बोले कि चलो इस तरीके से वेव मोशन में इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ओके, वेवी नेचर, ये 11th केमिस्ट्री में आप लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। ओके, सो इफ अकॉर्डिंग टू दिस दे मेड अ रीजन, एक रीजन ट्रेस आउट कर दिया, ये न्यूक्लियस है जैसे सपोज। ओके, एंड दे ट्रेस्ड आउट अ कंप्लीट 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे फुटबॉल की तरह, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉल है और उस तरीके से इसमें आप, ओके बेटा, सो दे मेड अ कंप्लीट रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन जनरेट हो गया था आपका अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। Okay, so the concept of orbit was discarded. Okay, so हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ऑर्बिट फॉलो नहीं कर रहा है, यही मैंने अभी समझाया कि ऑर्बिट इज नॉट फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, और ऑर्बिटल जो है इट फॉलोज, ये इस अकॉर्डिंग है, ये हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। ओके, क्योंकि इसने रीजन बताया, इसने फिक्स पाथ ट्रेस आउट नहीं किया, इसने एक फिक्स पाथ ट्रेस आउट नहीं कर दिया कि बस इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, ही सेड एक रीजन है स्पेस में कहीं पे भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन। फाइन, चलिए now the last point is for the difference between orbit and orbital is, in an orbit maximum number of electrons is given by the formula 2n square. Okay, 2n square, here n means the number of orbit, and in case of an orbital the maximum number of electrons are given by the orbital is 2. Okay, maximum एक ऑर्बिटल में, मैं आपके जब केमिस्ट्री में हम जनरली इसको ऐसे स्क्वायर शेप में रख देते और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें 2 रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। So now the next topic which I am going to start is today is your quantum numbers. Okay beta, so let's start. First of all let us discuss that what are quantum numbers. So let me tell you, quantum numbers are a set of 4 number. क्या होते हैं बच्चे क्वांटम नंबर? दे आर अ सेट ऑफ 4 numbers
set of 4 numbers which give complete information of an electron, which give complete information of an electron. ओके, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ किस ऑर्बिट में है, सॉरी किस शेल में है, किस सब शेल में है, क्या उसका ओरिएंटेशन है, क्या उसका ऑर्बिटल है. ओके, एवरीथिंग, every information are given by these quantum numbers. Okay, so they are a set of 4 numbers. Now सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ जाएगा, पोजीशन एंड एनर्जी, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी इसमें आपके. ओके, सो पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom is described by okay beta. Now 4 quantum numbers are, number 1 is principal quantum number, second is azimuthal quantum number, then the third one is magnetic quantum number, and the last one, fourth quantum number is spin quantum number. Now we are going to discuss them one by one. Okay, so let's start with principal quantum number. Let's start with principal quantum number. Okay, so let me tell you beta, first of all let us know the name of the scientist. So principal quantum number, it was given by the scientist Bohr, Neil Bohr. Okay, name of the scientist was Neil Bohr. Okay, then it is denoted by the symbol n. It is denoted by the symbol n. अब देखो, आपको समझ आ जाना चाहिए, सिंबल n से डिनोट हो रहा है मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में हमें बताएगा, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेल. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यही लिख लीजिए ब्रैकेट में. एक्चुअली इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेल, मतलब जो KLMN, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में प्रेजेंट है, वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चलती है. ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल n, एंड यू वेरी वेल नो n किसके लिए रिप्रेजेंटेशन है, शेल का रिप्रेजेंटेशन है. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच शेल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट एल्स इट विल, अब शेल से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन की, तो दैट ऑल विल बी टोल्ड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो इट represents the name, size and energy of the orbit or shell to which the electron belongs. Okay, so just now I told you that it tells the name, size and energy of the shell. वही शेल की इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा आपको. ओके बेटा, देन अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो आपको मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि किस तरीके से, देखो क्वांटम ऐसे शेल्स आपकी चल रही हैं, शेल में सब शेल्स हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं. ओके, एंड जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मीन्स n की वैल्यू, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल, देन दिस थर्ड शेल. तो जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा, आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस.
फर्स्ट केस में इतना डिस्टेंस है, सेकंड केस में इतना डिस्टेंस हो गया, थर्ड में इतना इंक्रीज हो गया। ओके, सो व्हाट डू वी से कि जैसे जैसे आपका n का वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे ही क्या होगा बेटा, रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा। रेडियस किसका, शेल का रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट आल्सो, वेरी इजी पॉइंट इट इज। सो द थर्ड पॉइंट सेज higher the value of n, greater is the distance of the shell from nucleus। ओके, ये पॉइंट इसमें आपका हो गया। सो r1 यानी रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इट विल बी द स्मॉलेस्ट, देन सेकेंड का इंक्रीज हुआ, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से ये पॉइंट आपका चलेगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जितना ज़्यादा वैल्यू n का होता जाएगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी, देखो आपको कल भी बताया था एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी इंक्रीज, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 0। प्लीज वो पॉइंट याद रखना, ठीक है, नोट्स में आपने लिखा होगा तो ध्यान भी दिया होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज 0, जो कब आपको मिलती है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज higher the value of n, greater is the magnitude of energy। Okay, so we can say E1 is lesser than E2, E2 is lesser than E3, and energy keeps on increasing with the increase in the number of shell। Okay, it is like this। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल वो ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा, ठीक है, बट उसको एक बार यहाँ पे लिख लीजिए आप उस पॉइंट को, दैट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। इसकी डिटेल्स में पीछे दे चुकी हूँ। ओके, लाइक इफ वी कीप द वैल्यू ऑफ n टू बी 1, तो फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2। अगर सेकंड शेल में निकालेंगे 8, थर्ड शेल में निकालेंगे 18, फोर्थ में निकालेंगे 32। ओके, ये वही केस है बेटा। देन नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज angular momentum। Here we are talking about the angular momentum। Okay, so angular momentum can be calculated using principal quantum number। Okay, using principal quantum number, angular momentum can be calculated by using it, and the formula for calculation of angular momentum is this, mvr। Okay, mvr is equal to nh upon 2 pi। ये ऑलरेडी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और जो वैल्यू ऑफ n है वो बेटा फिक्स नहीं है, वो 1 से लेके इंफिनिटी, लाइक इट इज नॉट सेड दैट कि आपके पास 5 शेल है, 6। अभी देखो एग्जिस्टेंस में केवल 7 शेल्स, क्योंकि दिस मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, बट जो शेल्स हैं it is said that the value of n, number of shells, it can be up to infinity। Okay, so this is the next point। what is it, value of n is from 1 to infinity। okay beta, okay, so value of n can be varied from 1 to infinity। okay, then last point already we know about the principal quantum number, that every shell
every shell is given a designation. Okay, designation means they are given a special representation symbol. Okay, so for when one is n is equal to 1 फर्स्ट शेल. ओके, जब आपका फर्स्ट शेल की अगर मैं बात करूँ मीन्स व्हेन n इज इक्वल टू 1, सो द सिंबल इज फॉर इट इज k शेल. ओके, सेकेंड शेल n इज इक्वल टू 2, देन l शेल. n इज इक्वल टू 3, देन m शेल. n is equal to 4, n shell. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देखो आपको वही चीजें जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं. ओके, बट क्वांटम नंबर की कैटेगरी में अब आप इसको स्टडी करेंगे. ओके, सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन वर प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n से रिप्रेजेंट हम करते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वांटम नंबर? इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. Okay, see, azimuthal quantum number, it is represented by the symbol small l, and it was given by the scientist Summerfield. Given by Summerfield. Okay, this was the name of the scientist. See, this azimuthal quantum number, it is also known as angular quantum number. This is also known as angular quantum number. Okay, subsidiary quantum number, secondary quantum number, these are the names. Okay, because a question may be asked from this side also. Okay, subsidiary quantum number. Then the third name is also given to it, that is secondary quantum number. Okay, these are some of some other names given to azimuthal quantum number. Okay, beta. Now we will talk about the properties. So first point if we talk about is कि वैल्यू, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें शेल से पता चल रही थी कि अगर फर्स्ट शेल है तो 1 वैल्यू के सिंबल हो जाएगा, सेकंड शेल है l, इस तरीके. अब यही चीजें हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे. ओके, एंड फॉर दिस वी मस्ट नो कि this quantum number gives the information of the subshell. Okay, gives the information of subshell कि in which subshell the electron is present. It gives the information of subshell. इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन अब कौन सी सबशेल में प्रेजेंट है ये यहाँ से पता चलेगा. ओके, सो दिस इज इट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि देखो शेल में सबशेल्स है, सबशेल्स में ऑर्बिटल है, तो किस शेल में कितने सबशेल्स हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, ओके, गिवन वैल्यू ऑफ n मीन्स गिवन शेल, वैल्यूज ऑफ l आर फ्रॉम 0 to n minus 1. This is the important part. Okay, यानी n यानी जितना शेल है उसमें कितने सब शेल्स होंगे वो कैसे पता चलेगा बेटा? हमें 0 से लेके n minus 1 तक सब शेल्स होंगे. लेट अस फाइंड आउट. आपको समझाती हूँ मैं इसमें. सपोज दीज आर द वैल्यूज ऑफ n. इस साइड आपको वैल्यूज ऑफ n प्रोवाइडेड है, एंड फ्रॉम हियर वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ l. ओके, एल की वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं. चलिए देखिए बेटा, सपोज फर्स्ट शेल की बात करिए, वैल्यू ऑफ n इज 1. सो दिस इज द फॉर्मूला 0 to n minus 1. अब देखो 0 to n minus 1 का मतलब समझिए, 0 से लेकर n minus 1 तक. इट मीन्स 0 तो काउंट होगा ही होगा. ओके, 0 तो काउंट होना ही होना है बेटा हर शेल में. बट लास्ट, दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो 0 तो है ही. अब फॉर फर्स्ट शेल इफ वी फाइंड आउट n minus 1, अब n minus 1 करके देखेंगे यहाँ पे, तो n का वैल्यू क्या है फर्स्ट शेल में? 1. 1 minus 1 कितना हो गया? 0.
Okay, it means in first shell only one subshell is present. ठीक है, फर्स्ट शेल में केवल एक ही सबशेल प्रेजेंट है. ओके, और उसका वैल्यू क्या है बेटा? 0. नाउ वी कम टू सेकंड शेल. वैल्यू ऑफ n इज 2. सेम फॉर्मूला यही यूज करेंगे. 0 to n minus 1 मीन्स 0 तो काउंट होगा ही होगा. नाउ लेट्स कैलकुलेट द सेकंड वैल्यू. तो n minus 1, वैल्यू ऑफ n हियर इज 2. तो 2 minus 1 कितना होगा बेटा? 1. ओके, इट मीन्स कितनी वैल्यू हुई इसमें? कितने सबशेल्स हुए सेकंड शेल में? 2. फर्स्ट शेल में 1 सबशेल, सेकंड शेल में 2 सबशेल्स, दैट इज 0 and 1. वैल्यूज है बेटा. ये वैल्यूज का मतलब समझ रहे हैं ना कि उसको ये इतने जीरो वाला सबशेल है, यहाँ 0 और 1 वाले सबशेल है. नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द थर्ड शेल के लिए. फॉर थर्ड शेल वी टेक द वैल्यू ऑफ n टू बी 3. सेम फॉर्मूला, 0 तो होना ही होना है. नाउ जस्ट फाइंड इट आउट. n का वैल्यू कितना होगा थर्ड शेल के लिए? 3 minus 1. Okay, so what do you get? 3 minus 1, 2. So write down 2 here. अब गड़बड़ बच्चे यहाँ कर जाते हैं कि वो बस लिख देते हैं 0 and 2. बेटा उसने ऐसे नहीं लिखना है 0 and n minus 1. ठीक है, and नहीं लगाया है. 0 and n minus 1 का तो आप सही होते हैं. बट ही हैज गिवन दैट 0 to n minus 1, मतलब 0 से लेके n minus 1 तक. तो 0 से n minus 1 यानी फ्रैक्शंस वगैरह छोड़ देना आप इसमें से. तो 0, 1 and 2, this much. So third shell will have 3 subshells. थर्ड शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट हो जाएंगी? 3. ओके, देन वी मूव टू फोर्थ शेल. फोर्थ शेल में मूव करेंगे तो 0, 1, 2 and 3, यानी ये तो काउंट होंगे 1 और 2 तो. और 3 कहाँ से आया बेटा? 4 minus 1. हाईएस्ट लिमिट ये है, लोएस्ट 0 रहेगा सब में. ओके, सो दिस इज हाउ. अब आप पीछे कल वाला वर्क देखना आप अपना. ठीक है, उसमें आपने लिखा था ना कि फर्स्ट शेल में 1 सब शेल होती है, सेकंड शेल में 2 सब शेल होती है, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होती है, फोर्थ में 4 सब शेल होती है. वो कैसे आया? वो यहाँ से आया, 0 to n माइनस फॉर्मूला से आया. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. रिप्रेजेंटेशंस की बात कर लेते हैं इसमें. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशंस यानी सिंबल्स. सी, इफ द वैल्यू ऑफ l इज 0, यहाँ आपने l का वैल्यू निकाल लिया ना. वैल्यू ऑफ l इज 0, वैल्यू ऑफ l इज 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3. ओके, सो नाउ वी विल फाइंड आउट दिस 0 वैल्यू है, तो द डेजिग्नेशन गिवन टू इट विल बी, ये तो वैल्यू है l का. ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? डेजिग्नेशंस. ओके, सो डेजिग्नेशन क्या होगा इसका? s सबशेल. इफ वैल्यू ऑफ l इज 1 देन p सबशेल. ओके, वैल्यू ऑफ l इज 2 देन d सबशेल. वैल्यू ऑफ l इज 3 देन f सबशेल. इस तरीके से चलेगा. ओके, SPDF. और n माइनस 1 है तो देखो फोर्थ शेल में टोटल 4 ही हो गए ना, 0 भी तो काउंट हो रहा है इस वजह से, तो 4 मत लेना. ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. इसमें नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल. दिस वी ऑलरेडी नो, बस उसको नोट कर लीजिए आप. ओके, दैट द नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल किसके इक्वल होती है? टोटल नंबर ऑफ शेल किसके इक्वल होंगी बेटा? वो नंबर ऑफ शेल्स. ओके, नंबर ऑफ सबशेल्स विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, ये हम पीछे देख भी चुके हैं. यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1. सबशेल कितना है? 1. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, सबशेल 2. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, सबशेल 3, 4, तो 4. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5th. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l
जो मैक्सिमम वैल्यू है एल का वो बेटा एन की वैल्यू से 1 नंबर कम हो, मतलब हमेशा उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा उसमें, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 0 to n-1 है ना, तो n-1 तो लेस ही हुआ ना, n की वैल्यू से कम ही हुआ वो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ n, मतलब एज्यूमेटल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, l की जो वैल्यू होगी वो हमेशा n की वैल्यू से कम होगी। ओके, सो इसी की वजह से आपका फर्स्ट शेल में p एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, फर्स्ट शेल में केवल 0 है ना, फर्स्ट शेल में ओनली 0 इज देयर, सेकंड शेल में हाईएस्ट 1 है, सेकंड शेल में आपको 2 नहीं दिख रहा है। ओके, यानी p ऑर्बिटल नहीं दिख रहा है। ओके बेटा, सो दिस इज इट। सो इसी के हिसाब से फर्स्ट शेल में p पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट शेल में p नहीं पॉसिबल है, f नहीं पॉसिबल है फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में देखो s और p तो रहेंगे, बिकॉज 0 और 1 तो है, तो sp तो है, बट सेकेंड शेल में आपका d प्रेजेंट नहीं रहेगा, सेकेंड शेल में आपका f प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट थर्ड शेल, तो देखो थर्ड शेल में क्या क्या वैल्यूज थी, वैल्यूज ऑफ द थर्ड शेल वर 0, 1 एंड 2, तो 0, 1 एंड 2 के हिसाब से क्या हो गया, s, p, d ये तो प्रेजेंट है, बट f प्रेजेंट नहीं है, मतलब 3f प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, सो ये वो सब शेल्स हैं विच आर नॉट पॉसिबल। ओके, सो 1p, 1f, 2d, 2f, 3f, ठीक है, आर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, n-1 है ना ये, इस वजह से। ओके, सो s 1s से स्टार्ट होता है आपका, ओके, और s स्टार्ट्स फ्रॉम 1s, p कहाँ से स्टार्ट होगा, p स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, p कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, सेकेंड शेल से 2p से। ओके, और d कहाँ से स्टार्ट होगा, d स्टार्ट्स फ्रॉम 3d, थर्ड सेल से शुरू होता है d। ओके, देन f स्टार्ट्स फ्रॉम 4f। ओके, ये हो गया इसमें अब आपका। अब लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, आज आई थिंक बस 2 ही क्वांटम नंबर हो पाएंगे अपने। ओके, सो नेक्स्ट इज रिलेटिव एनर्जी। देखो इसमें भी एनर्जी की बात होगी आपकी, ठीक है। सो रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स, subshells in a shell are as follows। ओके, एनर्जी की बात हो रही है, तो देखो बेटा एनर्जी तो वही हमें पता है कि जब इंक्रीज होता जाएगा, जैसे n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था तो एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, सेम वही है बेटा, ठीक है। l का वैल्यू इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी। सो अकॉर्डिंग टू इट s स्मॉलेस्ट है आपका सबशेल, सो इट विल बी हैविंग लीस्ट एनर्जी, आफ्टर दैट p, आफ्टर दैट d एंड आफ्टर दैट f। Okay, so this is the order of the energy। Okay, now the next very important point, देखो subshells having the equal values of L but different n values have similar shape but their size increases। Okay, देखो अभी आपको समझाते हैं, जैसे इस तरीके का है ना, जैसे देखिए 0 मीन्स s सबशेल, एस सबशेल फर्स्ट में भी प्रेजेंट है, एस आपका सेकंड में भी प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे द एस सबशेल यानी 0 जिसका वैल्यू है, इट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल, एस आपका सेकंड शेल में भी है, एस आपका थर्ड में भी है, एस सबशेल आपका फोर्थ में भी है। एंड हियर दिस पी, 1 किसके लिए सिंबल, 1 का सिंबल क्या है, पी, ठीक है। तो पी सबशेल आपकी सेकंड में भी है, पी आपकी थर्ड में भी है, पी आपका फोर्थ में भी है। सो वही पॉइंट है आपका कि ऐसे सबशेल्स जिनके एल का वैल्यू सेम है,
बट दे हैव डिफरेंट शेल। सब शेल सेम वैल्यू सेम है लेकिन एन की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसमें क्या होगा बेटा, देयर शेप विल बी सेम, शेप तो सेम होनी है लेकिन साइज बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेल का एस है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1s। ओके, सेकेंड शेल का एस है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 2s। थर्ड शेल का एस है तो 3s। अब 1s स्मॉल स्फीयर होगा, सेकेंड शेल इसका बात होगी तो बिगर स्फीयर हो जाएगा, थर्ड शेल का एस होगा तो उससे भी ज़्यादा बिगर स्फीयर। ठीक है, शेप सेम रहेगी स्फेरिकल ही लेकिन साइज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो वो आप नोट कर लीजिएंगे यहाँ पे। सो सब शेल्स having equal L values but with different N values. N values have similar shapes but their size increases as the value of n increases। ओके, जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइज इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझा चुकी हूँ। ओके, सो वी कैन से 2s सबशेल। ओके, जो 2s सबशेल है आपका, 2s सबशेल is greater in size than 1s सबशेल। ओके, 2s किससे बड़ा होगा, 1s से। और सेम वेज जो आपके 2p है, 3p है, 4p है। ओके, 2p 3p 4p दे हैव सिमिलर शेप। इनकी शेप क्या होगी, सिमिलर। हैव मतलब डम्बल शेप ही होगा। p का शेप कैसा था बेटा, डम्बल। तो दे हैव सिमिलर शेप but their size increases। okay, but their size increases, size इनका increase हो जाएगा। now the last point, it says that सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। लाइक शेल में हाँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, कहाँ से पता चल रहा था, 2n स्क्वायर से। ओके, नाउ सेम वेज वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम लोग। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a subshell is given by 2l plus 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा, 2 in the bracket 2l plus 1। let's apply it। ओके, चलो अप्लाई करते हैं इसको। ये सबशेल्स हो जाएंगी हमारी यहाँ पे और यहाँ आ जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एस सबशेल, फॉर एस सबशेल वैल्यू ऑफ एल कितना था बच्चे, 0 है ना। अब तक आप इतना तो समझ आएंगे होगा। एस सबशेल का वैल्यू कितना होता है, 0। एल इज द क्वांटम नंबर। ओके, सो अप्लाई द फॉर्मूला ये है, तो वैल्यू पुट करना 2 एल का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 प्लस 1। सॉल्व इट आउट, इसे सॉल्व करो। देखो 2 मल्टीप्लाइड 0 बाई 0 क्या हो जाएगा, 0। और ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 है। ठीक है, सो यहाँ आप अगर इसको पूरा इसको ऑब्जर्व करेंगे, ओके, सो यू विल गेट 1। ओके, पहले आपको क्या करना है बेटा, देखो बोर्ड मास रूल फॉलो करना और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। BOD, वी बोर्ड मास हो गया आजकल तो ये। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे ओवरऑल, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा अपना, 2। ठीक है, समझ गए ना। तो आंसर कितना आ गया इसमें आपका, 2।
तो एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है हमारे? 2। नाउ वी कम टू पी। पी का वैल्यू कितना है? यहाँ पीछे बताए थे, देखो बेटा, वैल्यू ऑफ पी इज 1। ओके, ये रख दीजिए वैल्यू, फिर से सॉल्व कीजिए 2। ना इसी फॉर्मूला में 2l प्लस 1 में पुट द वैल्यू ऑफ l टू बी 1। 1 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 1 है, इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका? इसमें आपका आंसर आ जाएगा 6। ओके, ये इनर पार्ट इसका 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6। So in P subshell, maximum 6 electrons can be accommodated. Then we come to D. D के लिए L का वैल्यू कितना था बच्चे? 2. Okay, so 2. Put the value of L here to be 2. So 2 multiplied by 2 plus 1. Solve कर दीजिए. 4 plus 1 5 multiplied by 2 is 10. मतलब D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10। देखो कल मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था, यहाँ से आ गए वो सारे, कहा था ना आपको कि फॉर्मूला है उसके लिए। सो दिस इज इट। देन वी कम टू एफ सबशेल। एफ सबशेल के लिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, 3। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ एल हियर 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1, so 2 multiplied by 3 is 6 plus 1 7, 7 multiplied by 2 is 14. So F में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे? 40। समझ गए बेटा? सो टुडे आप इतना करिए, इसे राइट डाउन कीजिए, एंड देन रेस्ट पार्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।